Good morning, all. Hope I'm audible to you, all right? Anyone? Hello. Yes, sir. Yes, thank you very much. Oh, sir. Fine. Coming to the next lecture, means I have discussed some syllabus related to the web technology in my last lecture. Fine. So still the students are joining. Let them to join. So we'll continue with the lectures, right? Fine. So, in this semester, student, I'm going to discuss so many new languages, especially the PHP we are continuing. And there is another very important topic, a very important chapter which we are going to cover, that is nothing but an XML, Extensible Markup Language, right? So, and there is another chapter which is there, the JavaScript. Student, already you are learning the Angular JS. So it is very, very important, student. Please don't miss the Angular JS because it will be helpful for your project purpose. To develop the single page applications, we are using the Angular JS. You can use that concept also to develop the your projects. Right. So, or else you can use the HTML, CSS, only JavaScript. Yes, you can do it. HTML, CSS, I put in the Angular JS. Yes, you can use it. No problem at all. So, anyway, you need to develop the project. Right. So, this is very important things you have to get remember. Please don't miss the lectures. Be attend the lectures. Right. Yes, sir. Yes, yes, fine. So, fine. Still the students are joining. Let me share the screen. Student, please join in time. This is very, very important. Fine. मोशन आपका टाइम टेबल आ गया है क्या? नहीं है अभी तक. नहीं सर, नहीं आया. नहीं आया. चलो अच्छी बात है. ठीक है. Hope my screen is visible to you all. Let me Yes, continue with the subject, the PHP, web technology student, right? So the first chapter which I'm going to cover the web technology, in which we are discussing the so many server side information, server side variables which we are going to discuss. Those are we are going to call them super global variables, right? So to develop the PHP applications, to develop the server side scripting language, so we are making use of an PHP. Lot many things we have discussed in the first semester, right? I mean to say, there are so many concepts we have discussed, right? Fine. So all those things we will. Yes, wait, student. बोलो ना मैडम. So how to create a functions, how to use the whatever arrays, what is a string, all those things we have discussed. Even the some database concept also we have discussed, some file handling concept also we have discussed. Again, to develop the server side scripting language, it is very, very important to use the some global variables. So these variables, already in some variables we have get already discussed. Hope my sound is clear, right, Mushin?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. Fine, fine, fine. So because I am getting the some background disturbance, so let me close the windows. Wait. बच्चे मस्त एंजॉय करते हैं नीचे और नीचे के लोग हम लोग इधर लेक्चर है. Yes, fine. So some variables we are very much familiar, get and post method, right? So already we have get used to this get and post methods in our first semester of programming, right? So anyway, to collect the data from an HTML pages, we are making use of an get and post method, right? So when a method is equal to get, we have get used get. So at that time to collect the data from an HTML page in a server, we are making use of a dollar underscore get, right? So when the method is equal to post, we have get used. So to collect the those HTML data, we are using the dollar underscore post, right? Already we are very much familiar. So, but there are the some other variables that all these variables we are discussing in this chapter. So, the first we will discuss about a global dollar globals. There is no underscore with this variable, right? So, this is an associative array student. This is a variable to collect the data. Yeah, what in the to get the values which is defined outside the function. Global means what? The value which is defined outside the function. For example, let me write a program. So I'm writing the scripting language PHP. Suppose there is a variable var which is equal to some of the value which you have defined. So let me define a function. I will write the function name, right? So in this function, I'm trying to print that values. For example, function, inside function you can say it, inside a function, so that values I want to print it. For example, dollar of in the, yeah, value is equal to the dollar of what, val, yeah, var we can say. Whenever you are trying to print the content, I need to call this function, right? So to call the function, just I'm writing the function func, right? So let me show the program inside the WAMP server. कहाँ पर भी सेव नहीं कर सकते, आप लोगों को पता है. WAMP में ww में versus a division, right? So I will call this as a second semester sem 2 करेंगे इसके अंदर और sem 2 करेंगे. ये सारे फंक्शन इसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, right? So let me write a program, what global, a global dot php, right? I'm saving this one. Let me open this program inside the browser. Whenever you are running the program, that should be running the browser, right? So let me take the local web, local host. So 89 is it? So I think I need to start the server. मुझे server start करना पड़ेगा. WAMP server. Let me start the WAMP server here. So you can run the same program in the Windows also, right? Yes, it's starting. So TYA division for semester 2 may global. Yes, what this saying is giving the some warning student. It's not an accessing the values because that values out defined outside the function. Function से बाहर मैंने define किया. See, if I given the one variable over here, some values, so definitely it would call the print the 100%. Here. बट बीइंग इनसाइड द फंक्शन, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, तो एक वेरिएबल डिफाइन किया है, लोकल वेरिएबल, क्योंकि पीएचपी के अंदर वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर नहीं करते, राइट? सो व्हेन आई एम ट्राइंग टू यूज दिस var, सेम नेम है, दोनों में सेम नेम है, तो व्हाट इट डज, इट विल रेफर्स टू बी अ लोकल वेरिएबल. बट बीइंग इनसाइड द फंक्शन आई वांट टू एक्सेस द ग्लोबल वैल्यूज. I want to access the, I'm inside the function.
inside the function only. I want to access the local level. This is the local, a local value. I want to access a global value, global, global what in the value, right? So how could you access? So we can access by using the dollar global cities, not global. Just we need is an associative array. It is an associative array. So I want to break that. So the dot operator we are using for a concatenation purpose. So this is the associative array. Just we need to write the name. उस वेरिएबल का नाम हमें मेंशन करना है. Yes, what it does, it will access the global value. The value which is defined outside the is a var. The name. Don't use the dollar sign over here. Yes, what it does, it will access the global value. It will try to print the what in the 100. Let me run the program here. Yes. We are using the local जब यूज करेंगे, so just normal variable इस्तेमाल करेंगे, it will print the local value. But when we want to access the global values, so we can make use of a variable that is associative array. So that is nothing but a dollar global, right? Any doubts from your end? Please let me know. Any doubts? I'm there with you No, all. sir. Oh, yes. If you want, you can take the screenshot of this program. So definitely it will help you all, right? This is the global. देखो अगर मैंने ग्लोबल वेरिएबल को कुछ चेंजेस भी किया समझो मैंने यहाँ. So for example, dollar globals of what in the var. So I want to change that value plus equal to what in the 10. Yes, you can do it. तो अब बाहर फंक्शन के बाहर आने के बाद उसका वैल्यूज प्रिंट करेंगे हम लोग. So the for example variable var which is equal to dollar of yes, it will does, it will take the 110 here, right? Because I'm trying to access the global memory location, not a local memory location. Local memory यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, ग्लोबल का मेमोरी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, right? This is the point you have to remember. Whatever the task which you want to, so the main thing is that what, so whenever you want to access the global values, you can make use of this variable, right? Yes, if you want, you can take the screenshot. Let me go with another program. For example, I will save this one. I will take the save as server information. There is another program I want to explain. Server server info dot php, right? Server info. There is another function I want to explain over here. What? So the server side information I want to print the content here. See, there is a to print the content from the server. There is another variable that we need to understand, the a dollar server. What it does to get the information associated with a server. Who is the user? Which which is the file name you are contacting? सर्वर का वर्जन क्या है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, कौन सा प्रोटोकॉल आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे इंफॉर्मेशन all the information related to the server. So at that time I can make use of it. This is an associative array. So for that purpose, this is an associative array. So for that purpose, whenever you want to print the associative, you are making use of a dollar underscore r, print underscore r. What you want to print? You want to print the dollar underscore server. These are the variables, student. You should be remember. You should write in a capital only. How the variables are case sensitive, you know that, right? Case sensitive variables. So just I want to print the information. So over here in the what in the yes, here we are getting the so much of information. We are getting the so much of information, student. But it's not in systematic. बहुत सारे information मिल रहा है मुझे यहाँ पर, but not in systematic. For printing the content in a systematic,
What I will do, I will use the instead of this, I will use the for each dollar server as, so we'll use the sum key and uh, equal to some value, right? I want to print those values, key and values. So the echo, the wait, some students are waiting, I think. Yes, you should be in time, student. Don't miss the lectures. So let me print the key and values. Key is equal to key and what in the value, dollar of value. Then I want to break it. BR. Yes. So let me print the content in a systematic order. Yes. So content which I want to print the system. So I want to print the some server information. Echo H1 server information. It's all the server information is printing, student. See, the HTTP host कौन है? Local host 89. देखो इससे ही हमने कॉल कर रहे हो सर्वर को, राइट? बिकॉज इट सर्वर इज देयर इन द लोकल मशीन. आपका जो सर्वर है वो लोकल मशीन पे है. So I'm calling from the local machine. That's what it is, a HTTP 89 local host 89. So आपका HTTP का जो कनेक्शन है, it is a जिंदा है अभी, क्लोज नहीं किया है. कीप अलाइव. कौन सा कैशे कंट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, कौन सा ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा ब्रांड इस्तेमाल, कौन सा प्लेटफॉर्म है आपका. सी इट्स गिविंग द प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन आल्सो, स्टूडेंट. अपग्रेड वर्जन क्या है, मेरा एजेंट कौन सा है, मोजिला 5, विंडोज एनटी सभी के लिए चलता है, अपाची वेबकिट है, राइट. So it has a lot of information. Wait, student. Hello. Hello. ಲೆಕ್ಚರ್ ಅವಾಗ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. To collect the server information, hope I'm audible, Mozi. Yes. Yes, sir. Yes, yes. So thank you. See here, getting the all the information related to the what in the path भी मिल रहा है आपको. So the system root कौन सा है वो भी मिल रहा है. System का computer का specification भी मिल रहा है हमारा. So the all the informations, the software server software कौन सा है, Apache 2.5 है, PHP कौन सा है 5.1 है. So the server का नाम भी मिल रहा है मुझे, local host, address मिल रहा है, port number मिल रहा है यहाँ पर.
मैं जब सर्वर को मैं कॉल करते वक्त कैसे कॉल करते थे हम लोग, सो द लोकल होस्ट 89 देते हैं. That 89 is then a port number, student. The server name is what? Localhost. When you are trying to open the Google page, what exactly you are writing the www.google.com. www in the sense what it is a searching from the web, world wide web. So the google.com is the domain name, student. Anyway, the domain name is the server name, right? गूगल का सर्वर का नाम है वो. तो बट मेरा सर्वर मेरा लोकल मशीन पे है, दैट्स व्हाट इज द लोकल होस्ट, द रूट डायरेक्टरी. सी में, वैम में, डब्ल्यू डब्ल्यू में. देखो हमारा डॉक्यूमेंट का रूट डायरेक्टरी क्या है? एडमिन. यस, सर्वर का एडमिन कौन है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सा है हमारा? मेरा स्क्रिप्ट का जो फाइल का नाम मुझे मिल रहा है वो कहाँ पर स्टोर है? सी में, वैम में, डब्ल्यू डब्ल्यू में, टी वाई ए में, सेमेस्टर 2 में. सर्वर इन्फो, यस, द रिमोट पोर्ट नंबर. मेरा सी जी आई कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल, मेथड कौन सा इस्तेमाल कर, रिक्वेस्ट मेथड. what the request method is? By default is an get method, right? स्क्रिप्ट का नाम एक PHP शेल्फ खुद का को कॉल कर रहे हैं, एंड कौन सा टाइम पे वो रिक्वेस्ट दिए थे वो भी इंफॉर्मेशन. all information about the server. To collect the all the information we are making use of this program. अगर यही आपको टेबल का फॉर्मेट में प्रिंट करना है, so you can print the content in a table format also. Echo table border which is equal to sum of 1. So I want to print the content in the rows and columns. Echo so here. So I want to close it. The content I want to td slash td. Next to table data slash td. Let me run the program here. Refresh. The content is printing in a table format, student. Right? So key एक रो पे प्रिंट किया मैंने, एंड वैल्यूज और एक रो पे प्रिंट किया और एक कॉलम पे प्रिंट किया. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एग्जामिनेशन ऑफलाइन रहे तो ये क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है आपके एग्जामिनेशन में. So if you want, you can take the screenshot of this program to collect the information related to the server. Yes, please take the screenshot. Over. Done. Done, sir. Yes. Any doubts from your end, please let me know. No doubt. Okay, No, sir, no doubt. coming to the next point, get and post methods. Dollar underscore get and dollar underscore post. What exactly it is? As you know already very well, student, already we have very much familiar in this dollar underscore get and dollar underscore post. To collect the data from an HTML page on the client machine, you can say it. On the client page. To collect the data, क्योंकि डेटा तो चाहिए मुझे प्रोसेसिंग करने के लिए PHP के अंदर. तो वो डेटा कैसे गेट करते हैं हम लोग, कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं? By using a method is equal to get and post. Get or post. Student, you should be remember, not only these two methods, student. There are so many methods which are there in HTML. Method is equal to get, method is equal to post, method is equal to in the delete, trace, put. So many methods are there. But they are using the get and post. But it has some limitations, student. When you are using the get method, so the data will be visualized in the browser. Browser पे data दिखता है, student. Right? The data will be visualized in the browser.
when you are using the method is equal to post, डेटा तो ट्रांसफर होता ही है, क्लाइंट से सर्वर को, सर्वर से क्लाइंट्स को, सारे चीजें होते हैं, but data will be transferred in the form of an hidden format student. Data will not be visible, data visible नहीं रहता है, the data will be transferred in the form of an hidden format. And one more thing is that it has some limitations. When you are using the method is equal to get, it has some limitation. What limitation? Is maximum एक 20 MB डेटा ट्रांसफर, 20 MB भी नहीं, केबी में डेटा ट्रांसफर, उससे ज्यादा डेटा को अगर ट्रांसफर करना है, फिर फॉर एग्जांपल आई वांट टू अपलोड द सम पिक्चर्स टू द सर्वर, या आई वांट टू डाउनलोड द पिक्चर्स फ्रॉम द सर्वर, एक पिक्चर मुझे सर्वर से डाउनलोड करना है या एक पिक्चर मुझे सर्वर पे अपलोड करना है, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, राइट? You want to download some things, right? So at that time you should be remember you should to use the post, because the picture will be it is in a GB, the 720 MB somehow. Above the 700 MB, 800 MB, the data will be. So at that time you cannot use the method is equal to post. So get, and you want to transfer the some unauthenticated data, some small amount of data, unauthenticated data. Unauthenticated in the sense what? Data is not that much of secure. जरूरत नहीं, उतना सिक्योर रखने का जरूरत नहीं है. सी फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू लॉग इन द कंटेंट, आपको अगर लॉग इन कर रहे समझो आप, राइट? जब आप लॉग इन कर रहे, यूजर नेम पासवर्ड आप फॉरवर्ड करेंगे, जब यूजर नेम पासवर्ड आप लोग फॉरवर्ड कर रहे तो योर पासवर्ड शुड बी सिक्योर. So in such a situation, if you are used method is equal to get, what will happen? The data will be visible. Let me take an example. You know that already I have used that one. Let me take an program, get and post method. So the new options I will use it. Save it. Let me write a PHP program here. PHP. So what I will do? Yes. So I want to create some echo या HTML पेज लिखेंगे हम लोग HTML पेज लिखेंगे. I want to collect the data HTML. So I want to close that HTML. Let me create a body. Yes, I want to create a form action which is equal to, say for example get and post dot php पे जाएंगे, the method is equal to, I want to use the get here, right? So use the form tag I am closing here. Suppose for example enter the username, I want to get the username input type is equal to text box I want to use, the value is equal to, या नेम, इसका नाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम से हम लोग क्या करते हैं डेटा एक्सेस करते हैं, वी आर to break the line. Let me copy the content here, pass, right? I want to use the user password also. Hope my screen is usable, right? I'm audible to you all, please let me know. Input type is equal to submit, and this value is equal to putting the submit. You are login, I will write login. Let me copy this one and let me write the reset also. Reset. अपने व्हाट्सएप किया, मेल किया. मेरा लेक्चर है 1:30 बजे तक, मेरा लेक्चर के बाद ही करूँगा. कितना है स्टूडेंट्स? 40 सेकंड.
बट 1:30 बजे के बाद है। कल आप लेक्चर को दे दो, वो स्नेल मैम को देता हूँ, उनका कॉल आया था। रहने भी नहीं देता, नहीं नहीं, वो खुद बोले, वो बोले कि मुझे मालूम नहीं कब स्टार्ट किया। वो कम से कम उनको सिलेबस तो डिस्कस करिए, मेरे को चलो ये नहीं चला। क्योंकि फिर ये एंड्रॉयड है ना, मुझे तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है सर, कभी कभी टाइम तो ही। कल मैं और ये लिख देना, मुझे हमको पहला लेने के लिए बोलो, मैं थर्ड लेक्चर लेता हूँ। तो थोड़ी लेना, मैंने कहा तुमको पैसे देता हूँ। मैं लेता हूँ, लेकिन मुझे जब प्रॉब्लम है तब नहीं लूंगा मैं, ठीक है, कल लेता हूँ। आज भी है, मालूम है। Yes. So here I am giving the its name is what get and post dot html, right? Yes, there's an HTML page which I have created. Right. So let me take another notepad. Hope I'm there with you all, right, student? हाँ या ना बोलो यार, मैं स्क्रीन के साथ बात कर रहा हूँ। बाकी के लोग नहीं है क्या? एक दो लोग ही रेस्पॉन्स देते हैं क्या? है क्या बाकी के लोग? हमारे मशीन गया, मैं आपका डिस्टर्ब आ रहा है। बाकी के लोग अभी 50-60 बच्चे हैं उसमें का, बाकी के लोग एक जने भी रेस्पॉन्स नहीं देंगे। ईश्वरी, प्रेरणा, देखो मैं नाम ले रहा हूँ, आप लोगों को सीधा ऑप्शन पे डाल देता हूँ अगर आप लोगों ने रेस्पॉन्स नहीं दे रहे तो। कैश यस सर। सुनाई दे रहा है ना? आप लोगों को यही पूछ रहा हूँ, कोई तो एक अनम्यूट करके मुझे रेस्पॉन्स दे देने के लिए बोलता हूँ। एक दो स्टूडेंट ही बात कर रहे तो बाकी के लोग क्या सो गए क्या? See, I don't want to use the अच्छा नहीं लगता है, बट आप लोग रेस्पॉन्स नहीं देते तो मुझे भी थोड़ा दिमाग का बत्ती जलता है, याद रखो। सब मत करो, आप लोग पढ़ाई करने के लिए आए तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उसका रेस्पॉन्स दे दो। तो मैं स्क्रीन के साथ बात कर रहा हूँ तो मुझे मालूम नहीं होता है कि कौन सुन रहे क्या नहीं सुन रहे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आई डोंट नो, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। एक दो बच्चों ने ही रेस्पॉन्स वो उन्होंने ठेका लिया है क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं रहता है। See, I have sent the data by using the get method. I need to use the dollar of, for example, user which is equal to dollar underscore get, right? Get. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका वेरिएबल जो वेरिएबल है इसका नाम दे देंगे, राइट? सो आई वांट टू गेट द वैल्यूज, दैट इज द पास विच इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट मेथड व्हिच आई एम यूजिंग, right? So I will use the pass here, right? Let me print it. Simply I want to print the content over here. Yes. So for example, username which is equal to dollar of what user. I want to break it. Now I want to print the content from the browser, right? Pass. So user in the password, right? I want to save this one, that is nothing but a get in the post dot in the php, right? I'm saving. तो लेट मी ओपन द ब्राउजर, ब्राउजर ओपन करेंगे हम लोग, वहां पर जाके उसको रन करेंगे हम लोग, राइट? यस, सो आई एम यूजिंग द एचटीएमएल पेज हियर, राइट? हेलो, yes. So when I typing something here, username here, something, so let me write a username as a Satish and the password as a Satish. एक स्टार नहीं लिखा शायद मैंने वहाँ पर, इसके लिए वो दिखा रहा है। लेट मी ओपन द HTML. Input to type is equal to what? Password, right? So let me save the program. Let me open the program here. Yes. So the Satish. So when I use the typing something here, you are not understanding what I am typing here. स्टार दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, बिकॉज ऑफ दैट फील्ड सेटिंग, राइट? समथिंग
when I click on the login, you are getting the password. आपको पासवर्ड दिख रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर यूआरएल पे देखो. The data is get transferring. What? How it's transferring? It's transferring in a method is equal to get. It is visualizing student. यहाँ पर मैंने प्रिंट किया आपको दिख रहा है, ये बात अलग है. बट यूआरएल पे देखो आप लोग, pass is equal to Satish. So when you use the method is equal to get, the data will be transferred along with an get method, right? Method is equal to get use करते URL से ट्रांसफर होता है. जब URL से ट्रांसफर होता है, मेरा पीछे जो आदमी खड़ा है उसको दिख रहा है स्टूडेंट, डेटा आपको दिख रहा है. ये लेक्चर चलो आओ क्या, कहां पर, राइट. Yes. So when a method is equal to post, when I use the method is equal to post over here, जब method is equal to post इस्तेमाल करेंगे हम लोग. Yes. So जब भी post इस्तेमाल करते हैं here to collect the data, you have to make use of it. This server variable post, right? So let me save this one. Let me refresh the content. मुझे क्या करना है, refresh करना है यहाँ पर. Yes. When I type something here, so some things I'm typing. When I click on the login, the data is not visualizing student. देखो URL पे डेटा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर मैंने प्रिंट किया वो दिख रहा है, वो बात अलग है. Here I have printed the data, that's what it is printing, that's a secondary case. But see the URL inform resource locator. I'm calling to that get and post method, but the data which I am collecting, the data which I am transferring, with help of a method is equal to post. It will not be visible. Yes, this is the main the difference between the get and post method. And one more very important difference, that this is the authenticated data you are transferring or logging in the website. But username, if you are using the method is equal to post, definitely it will make the problems. Right? This is the very important things you should be remember, student. Right? So hope any doubts from your end, please let me know. Any doubt? No doubt. Wait, huh? Let me take an one more thing. You don't know which method you have used. Get and post method में कौन सा method इस्तेमाल किया पता नहीं. जब PHP में post यूज किए तो, या अगर instead of this if you use the request, जब अपने request इस्तेमाल करते तो भी चलता है. Method is equal to get है या post है पता नहीं है. So at that time you can make use of the request. Request भी इस्तेमाल कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Let me open the program here. Here I am I'm writing. Yes, you can use it. Request भी चलता है. Instead of जब method is equal to get use करते हैं, you have to use the $_get, right? So when a method is equal to post इस्तेमाल करते हैं, you have to use the $post, right? बट आपको पता नहीं मेथड इज इक्वल टू कौन सा लिया है, एट द टाइम क्या मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, सॉरी रिक्वेस्ट. होप यू अंडरस्टैंड.
let me stop my lecture over here. Would you have any doubts from your end? Please let me know. No doubt. So join the next lecture. Okay. हमारे आपका डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है. Okay. Yes. Let me stop the lectures over here. Thank you. Thank you, sir. Ma'am, voice is not audible. Lecture we discuss the introduction of our the syllabus or core syllabus. Okay, now we have to start the chapter number 1, introduction of compiler. Okay, so now we have to come with the introduction of compiler. So okay, tell me, what is the use of compiler, the student? Ma'am, hello. Hello. Yes. Ma'am, to convert the code means like what we enter into a program, that code is converted into the machine language. Yes, it is a program which converts high level language program into machine level language program. It is called as compiler. Okay, it is a translator. Okay, so now we have to come with the translator. Okay, so why we use the translator? Okay, so when we have to go with the computer is the mechanical device. Okay, it is a mechanical devices. It cannot understand the human language. Okay, so again we have to perform our program on computer. So it is a mixture of software and hardware. It is a mixture of software and hardware is the piece of mechanical devices. Okay, so and it is why we use the software to control that device.
Okay, so control that device, the compatible program we have to require, that is called as software. So that's why it is a your computer machine is the mixture of software and hardware. Okay, so hardware understand the instruction in the form of electronic charges, जैसे कि 0-1 फॉर्मेट, आपने इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा है, तो जो भी हम इंस्ट्रक्शंस उसको देते हैं उसको सब इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट्स में मिलते हैं कि डिवाइस ऑन ऑफ होता है, ठीक है, उसके हिसाब से. सो एंड इट इज अ काउंटर पार्ट ऑफ योर बाइनरी लैंग्वेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग. तो आप क्या करते हो, या फिर कंप्यूटर जिन्होंने क्रिएट किया उन्होंने क्या किया कि जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, इट इज नॉट अंडरस्टैंड बाय द मशीन. ओके, सो इट क्रिएट्स वन लैंग्वेज and it is a counterpart of your machine. So binary language, so binary language means it is the format of 0-1 format. Okay, binary language means it is a 0-1 format. Okay. कोण गेलं होतं? So it is a binary language, and binary language we know that we use two alphabets, zeros and ones. Okay, so that's why we can requires. तो अगर हमें 0-1 फॉर्मेट में प्रोग्राम लिखना है, so it is not possible to us. कैसे हम इंस्ट्रक्शन उसको देंगे, तो हम कैसे लिखते हैं, जैसे सी प्रोग्रामिंग तो प्रिंट एफ, अगर मुझे आउटपुट स्क्रीन पे कुछ मैसेज प्रिंट करना है तो आई यूज प्रिंट एफ स्टेटमेंट. मुझे यूजर से कुछ इनपुट लेना है या सिस्टम को कुछ इनपुट देना है, सो यूजर यूजेस अ स्कैनफ स्टेटमेंट, या फिर कैरेक्टर लेना है तो गेट कैर, ठीक है ना. तो उस फॉर्मेट में हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, बट अगर मुझे मशीन फॉर्मेट में या 0-1 फॉर्मेट में प्रोग्राम लिखना है, इट इज इम्पॉसिबल टू. ओके, सो इट इज डिफिकल्ट टू राइट अ प्रोग्राम इन 0-1 format. Okay, so that's why this is the need of compiler. What the compiler does, compiler accept a higher level language program जो human understandable है, ठीक है, and which is converted into a object code, and that object code is 0-1 format, and that object code is loaded on a loader. Okay, so compiler is a program which translate high level language to low level language. Okay, execution is not a part of your compiler. Execution करना आपके compiler का काम नहीं है, ठीक है. It just translate high level language program to low level language program, and it creates a object code. Yes, student, got it? Yes, ma'am. Okay, so this is the concept behind it, and which language we can use, that language is called as language processing system. Okay, so computer is made up of hardware and software. So hardware understand the it cannot understand the human language, and vice versa भी वही है कि human does not understand the machine language. Okay, so we write a compiler program, and that compiler program which converts high level language program which is understandable by user, and it converted that machine code which is understood by machine. And this process is called as a language processing system. Okay, इस process को क्या बोलते हैं, language processing system, और उसके साथ हमें communicate करना है, so we can use the operating system. Okay, we can use the operating system जो already आप OS में पढ़ रहे हो, ठीक है. So what is the language processing system, क्या steps है, तो पहला step क्या है, so we have to write a source code. जो भी सोर्स कोड होता है वो ह्यूमन फॉर्मेट में, जैसे आपका सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, तो जो .c का प्रोग्राम है वो आपका सोर्स कोड है. वी कैन अप्लाई ऑन कंपाइलर, बट बिफोर गोइंग टू द कंपाइलर फर्स्ट वी कैन यूज द प्री प्रोसेसर. व्हाई वी यूज द प्री प्रोसेसर स्टूडेंट बिफोर कंपाइलर? बिकॉज वी कैन राइट अ मैक्रोस और सिंबॉलिक कांस्टेंट. आपने सी में पढ़ा होगा कि हम सिंबॉलिक कांस्टेंट या फिर मैक्रोस लिखते हैं, और मैक्रोस या सिंबॉलिक कांस्टेंट का यूज क्या होता है, सपोज आपने ऊपर डिक्लेयर किया है हैश डिफाइन पी पाई एंड वैल्यू इज 3.142, तो जहां जहां आप पाई लिखोगे आपके प्रोग्राम में नीचे, दैट वैल्यू इज ऑटोमेटिकली रिप्लेसेस बाय 3.142. ओके, तो मैक्रो है, तो जो मैक्रो है वो एग्जीक्यूट करने का काम आपका कंपाइलर नहीं करता, उससे पहले एक लेयर आता है दैट इज कॉल्ड एज प्री प्रोसेसर. सो प्री प्रोसेसर एग्जीक्यूट दैट कोड. तो प्री प्रोसेसर पहले क्या करता है, जहां जहां उसको पाई मिलेगा, वो जो सिंबल मिलेगा दैट इज रिप्लेसेस बाय 3.142. फॉर एग्जांपल, आप कोई भी और चीज भी लिख सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया. तो वो रिप्लेस करके रखता है, एंड फिर उसके बाद प्रोग्राम कंपाइल्ड होता है. सो प्री प्रोसेस द कोड. Okay, and whatever the pre-processed code which is the input of your compiler. Okay, then compiler compiles the program and it creates a target assembly code. It creates a
टारगेट असेंबली कोड. सो जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम था उसमें जो भी आपने मैक्रोज या सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज किए थे वो सारे डिफाइन करके हो गए प्री प्रोसेसर से. ठीक है, वो रिप्लेस होने के बाद फिर कंपाइलर ने अपना काम किया. इट क्रिएट्स असेंबली कोड विच इज compatible, it is little bit understand by the user and मतलब 100% तो 40% यूजर को अंडरस्टैंड होगा, 60% मशीन को अंडरस्टैंड होगा. सो नाउ वी हैव टू दैट कोड इज लोडेड ऑन असेंबलर. ओके, व्हाट इज द असेंबलर डज? असेंबलर डज कि कहाँ पे आपने सिंबल डिक्लेयर किए हैं, कौन से टाइप के सिंबल है, तो उनको कितनी मेमोरी लग रही है, तो जो कहाँ पे वो स्टोर हुए. सो ऑल दीज थिंग्स रिलोकेटेबल बाय असेंबलर कोड. सो असेंबलर फाइंड आउट कि कौन से रजिस्टर, कहाँ पे रजिस्टर यूज किए हैं, कहाँ पे मेन मेमोरी यूज हुई है. ठीक है, ये सारी चीजें फाइंड आउट करने का काम जो है वो सब असेंबलर करता है. सो असेंबलर क्रिएट्स अ रीलोकेटेबल मशीन कोड. दैट रीलोकेटेबल मशीन कोड इज अपलोडेड ऑन लिंकर. ओके, व्हाट इज द लिंकर डज? जो आपने लाइब्रेरी फाइल्स यूज की है, जैसे कि हमने सपोज string.h ऐड किया है या फिर kanai.h ऐड किया है और आपने नीचे फंक्शन यूज किया getch, तो getch फंक्शन के लिए हमें क्या लगता है, kanai.h लगता है. या फिर आपने printf scanf लिया है, तो printf scanf जो फंक्शन है वो इनबिल्ट है, वो कहाँ पे स्टोर्ड है, तो वो stdir.h में के हेडर फाइल में क्रिएटेड है. तो वो जो हेडर फाइल्स है वो हेडर फाइल्स कहाँ से मिल रही है आपको, तो वो रिलोकेटेबल चीजें फाइंड आउट करने का काम, ठीक है, वो लिंकर करता है, मतलब लिंक करने का काम. इसलिए हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdir.h. द हैश इंडिकेट्स इट इज अ लिंकर फाइल, कि आपने दूसरे किसी फाइल से वो रेफरेंस लेके रखा हुआ है. ओके, सो लिंकिंग करने का काम वो आपका लिंकर करता है. दूसरा, आपने सपोज कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स यूज किए, जैसे mat.h यूज किया है आपने, और mat.h का आपने सपोज पावर फंक्शन यूज किया है या स्क्वायर रूट फंक्शन यूज किया है, तो लाइब्रेरी फाइल्स कौन सी है वो कनेक्ट करने का काम आपका लिंकर करता है. देन सेकंड, आपने फंक्शन यूज किए, सपोज आपने किसी और प्रोग्राम से फंक्शन यूज किए, सपोज printf ले लो, तो printf का काम क्या है, तो printf को हम, मुझे मैसेज लिखना है तो डबल कोटेशन में जो भी मैं लिखूंगी एज इट इज वहां पर डिस्प्ले होगा. नेक्स्ट, अगर printf में मैंने %d दिया है तो जो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है वो भी कंपलसरी इंटीजर ही होना चाहिए. अगर मैंने %c दिया है तो आर्ग्यूमेंट पास हुआ वो भी ch ही होना चाहिए. ये सब रीलोकेटेबल मॉडल करने का काम आपका लिंकर करता है. एंड इट क्रिएट्स अ executable machine code. That executable machine code are uploaded on loader, and it loader find out the memory locations of each and every variables, execute that instruction, and finally it creates a machine readable format code. Okay, so this is the process of language processing system. This is the process of language processing system. ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होगी, आपने ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ी होगी, बट फिर भी वी हैव टू रिवाइज इट. आपने पहले से में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भूल गए होंगे, तो वी हैव टू रिवाइज इट. यस स्टूडेंट, गॉट इट? Yes. Okay, so Yes, all ma'am. all that description we have to write over here. उसमें से एक मैंने यहाँ पे स्किप किया है, दैट इज क्रॉस कंपाइलर. ये आपके जो क्रॉस कंपाइलर है वो पोर्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम करता है, और इस चैप्टर में हम वो भी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो ये मैंने पर्पसफुली यहाँ पे स्किप किया हुआ है. ठीक है, तो बाकी की चीजें, कंपाइलर की जगह आप इंटरप्रेटर भी यूज कर सकते हो. ठीक है, सो वो टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर स्टूडेंट. ठीक है, यहाँ पे मैंने कंपाइलर लिया क्योंकि हम कंपाइलर पढ़ रहे हैं, बट ट्रांसलेटर है तो ट्रांसलेटर दो टाइप के आते हैं, एक तो वो इंटरप्रेटर होता है या फिर कंपाइलर होता है. तो दोनों में कुछ तो भी डिफरेंस है, तो बताओ क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस बता दो. अच्छा, जावा में आप क्या यूज करते हो, कंपाइलर यूज करते हो या इंटरप्रेटर यूज करते हो? सी में क्या यूज करते हो, इंटरप्रेटर यूज करते हो या Compiler. कंपाइलर? कंपाइलर, सी में कंपाइलर यूज करते हो, और Compiler. जावा में इंटरप्रेटर? Compiler only. नहीं, वहाँ पे इंटरप्रेटर होता है. ठीक है, सो वी हैव टू यूज द इंटरप्रेटर. दोनों में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस बताती हूँ. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. ओके, सो कंपाइलर, जब भी आप प्रोग्राम, जैसे कि सी का प्रोग्राम ले लो, जब भी आप सी का प्रोग्राम कंपाइल करते हो तो आप वहाँ पे मैसेज देते हो सी प्रोग्राम का नेम .c एंड एंटर. उसके बाद आपका पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है. इट एनालाइज द एरर इफ प्रेजेंट, इफ एनी. आपके प्रोग्राम में अगर कोई एरर प्रेजेंट है तो क्या करता है, आपको एरर डिस्प्ले करता है. ठीक है, सो कंपाइलर इट स्कैन होल द प्रोग्राम, इट टेक इनपुट एज अ एंटायर प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट. ठीक है, वो कंपाइल करने के लिए पूरा प्रोग्राम ले लेता है.
Okay, so compiler takes an entire program as an input, but what is an interpreter? Interpreter take a single instruction as an input. मतलब आपका पूरा प्रोग्राम आपने लिखा है, सपोज वो 100 लाइन का प्रोग्राम है, वो बिल्कुल 100 लाइन स्कैन नहीं करेगा एट ए टाइम, वो पहली लाइन लेगा हैश इंक्लूड stdi.h, ठीक है, वो स्कैन कर ली उसने, अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो नेक्स्ट इट स्कैन नेक्स्ट लाइन की वर्ड में, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन ओपनिंग ब्रैकेट, फिर नेक्स्ट लाइन आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सो सपोज इंटीजर टाइप के, सो इंट a कॉमा b सेमीकोलन, या फिर आपने a कॉमा b c दिया है, आपने बीच में से कॉमा ही नहीं दिया एंड सेमीकोलन, सो इट डिस्प्लेज द एरर फर्स्ट. ओके, तो लाइन बाय लाइन इट एक्सेप्ट द इनपुट एज अ program as a line by line. So this is the difference, basic difference between compiler and interpreter. Compiler can hold the program at a time, but interpreter line by line. Okay, so now we have to come with the compiler. Intermediate code is generated. आपका जो compiler है उसमें हमने बोला, अभी हमने यहाँ पे देखा था कि आपका जो compiler है, मैंने पहले बोला compiler it creates a object code, it does not create or it does not execute the file. सो इट क्रिएट्स ए इंटरमीडिएट कोड, मतलब आपका कंपाइलर जो है वो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है. ठीक है, सो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड, मतलब आपका अगर सी का प्रोग्राम है और सी का प्रोग्राम अगर आपने एग्जीक्यूट किया तो उसमें आपको 3 फाइल्स दिखेंगी, पहला आपकी .c फाइल, दूसरी ऑब्जेक्ट फाइल और तीसरी आपकी एग्जीक्यूटेबल a.out की फाइल. ये 3 फाइल्स दिखते हैं. जो आपके ऑब्जेक्ट फाइल होती है .obj, या फिर आप सपोज टर्बो सी में कर रहे हो तो .exe फाइल क्रिएट होती है. दैट exe फाइल इट इज योर ऑब्जेक्ट फाइल. ठीक है, मतलब वो आप किसी भी सिर्फ exe फाइल कॉपी करो और दूसरी किसी प्रोग्राम या मशीन पे डालो, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. व्हाई? बिकॉज इट क्रिएट्स अ इंटरमीडिएट कोड. ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होता है. So intermediate object code is generated, but here interpreter they does not create a object code. It does not create it. Okay, so third, conditional control statements are executed faster. यहाँ पे जो condition होती है, क्यों faster होते हैं? क्योंकि whole program scan हो जाता है और C का execution process क्या बोलता है कि before using the variable first you have to declare it. तो पहले वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, उनके लिए मेमोरी एलोकेट होती है, फिर वो सिंबल टेबल होता है उसमें स्टोर होते हैं, उसके रेफरेंसेस वहाँ पे स्टोर होते हैं. उसने अगर आपने कोई वेरिएबल दिया है कि सपोज आई इनिशियलाइज किया है i = 1, तो उसकी वैल्यू 1 है, तो वह वहाँ पे स्टोर हो जाती है. सो जब भी आप एग्जीक्यूट करने लगते हो प्रोग्राम, कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हो, चाहे वो फाइल हो, फॉर लूप हो, डू वाइल हो, देन दैट टाइम देयर execution speed of your control statements are faster as comparative to interpreter. Why? Because interpreters are slower, because उसमें पहले variable declare होते हैं, फिर conditions आती है, फिर आपने condition लिया while I is less than 10, but पहले आपने I variable declare करके रखा है i = 1. ठीक है, next अब I is less than 10, अब वो चेक करना है, पहले वो नीचे आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन स्कैन करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन स्कैन करने के बाद वहाँ पे सपोज उन्होंने कुछ सपोज सम ऑफ द नंबर्स दिया, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई दिया है, सो सम प्लस आई होगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन स्कैन होगी, दैट इज आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, एंड आई की वैल्यू यहाँ पे फिर से चेक होगी कि वो सिंबल टेबल में आई की वैल्यू पहले क्या थी, 1 थी, सो 1, और अब नेक्स्ट क्या है, 1 प्लस 1 इज 2. देन नेक्स्ट टाइम अगेन आपको बैक आना है, तो फिर से पहले आपका कंडीशन खत्म हुआ है नहीं, उसका नेक्स्ट कंडीशन क्या है, मतलब लूप खत्म हुआ है नहीं, फिर आपका इंटरप्रेटर उसको स्कैन करेगा, लूप अगर खत्म हो रहा है तो फिर से वो फिर ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा. दिस इज द इंटरप्रेटर. तो उसको टाइम जाता है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सो कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एज स्लोअर एज कंपैरेटिव टू कंपाइलर. ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम है, आपको दिखेगा भी नहीं, बट एक्चुअली बैकएंड में ही होता है. ओके, नेक्स्ट कंपाइलर. मेमोरी रिक्वायरमेंट कैसी होगी, मोर होगी, क्योंकि होल प्रोग्राम गेट स्कैन इनटू द मेन मेमोरी, तो ऑब्वियसली मेमोरी रिक्वायरमेंट इज मोर इन कंपाइलर एज कंपैरेटिव टू इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर में मेमोरी रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि लाइन बाय लाइन वो जा रहा है, तो उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना भी सिंपल हो रहा है. देन नेक्स्ट, प्रोग्राम नीड नॉट टू बी कंपाइल्ड एवरी टाइम, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होता है कंपाइलर में, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं है, कोई एरर नहीं है, और आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, तो आप फिर से a.out दे सकते हो और फिर विदाउट कंपाइलिंग योर प्रोग्राम आपका आउटपुट मिल जाएगा. बट इंटरप्रेटर इट डज नॉट हैपन.
ओके एवरी टाइम यू हैव टू कन्वर्ट और इंटरप्रेट योर प्रोग्राम. आपको हर बार ट्रांसलेट करना पड़ेगा प्रोग्राम, मतलब हर बार कंपाइल करना पड़ेगा. सो एवरी टाइम हायर लेवल प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू लोअर लेवल प्रोग्राम. व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट इंटरमीडिएट कोड. Okay, it does not create an intermediate code. Then next difference is error are displayed after entire program is checked. है ना, आपका सी का जो प्रोग्राम है उसी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, पूरा कंपाइल होता है, और कंपाइल होने के बाद अगर आपके प्रोग्राम में सपोज आपने आई नीचे यूज किया आई इज इक्वल टू 1 और सपोज आपने ऊपर डिक्लेयर ही नहीं किया, तो एग्जीक्यूट होने के बाद आप सॉरी कंपाइल होने के बाद डिस्प्लेज द एरर कि आई इज यूज बट नॉट डिक्लेयर्ड. फिर हमें पता चलता है कि हमने डिक्लेयर ही नहीं किया. So again we have to go into the program, again we have to declare it. ठीक है, मतलब पूरा प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद हमें पता चला. बट इन इंटरप्रेटर लाइन पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तुरंत आपको पता चल रहा है. जैसे कि आपने लिखा, हमने एग्जांपल लिया था इंटीजर a, b, c एंड सेमीकोलन, तो b एंड c के बीच में हमने स्पेस नहीं दिया. bc एज अ वेरिएबल लेगा, या फिर आप जब भी b यूज करो तो उस टाइम एरर देगा कि b इज डिक्लेयर्ड. तो इमीडिएटली एरर we have to find out in interpreter if any, agar error present hai to. Okay, so this is the main difference between compiler and interpreter. Example of C compiler and here interpreter is basics. Okay, so these are the difference between compiler and interpreter. Yes student, got it? Yes, ma'am. Okay, so everyone please take a screenshot of this because in exam number of times they ask the difference. काफी बार 1 मार्क्स के लिए आता है, अगर 1 मार्क्स के लिए तो आपको 2 ही डिफरेंस दें, अगर 3 मार्क्स के लिए आता है तो आपको 6 डिफरेंस दें. ठीक है, 2 मार्क्स के लिए 4 डिफरेंस दें, तो 6 डिफरेंस काफी है हमारे लिए. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. में से ये भी एक क्वेश्चन आता है. सो एवरीवन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. डन स्टूडेंट? Yes, ma'am. Done. Yes. Now we have to come with what is a compiler. अब मैंने पूरा कंपाइलर का डिफरेंस बता दिया, इंटरप्रेटर का डिफरेंस बता दिया. अब आप बोल रहे हो मैडम क्यों भाई व्हाट इज कंपाइलर? ओके, सो यस दिस इज डेफिनेशन. अब बार एग्जाम में कंपाइलर की डेफिनेशन पूछिए. सो व्हाट इज कंपाइलर? इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम व्हिच कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज, machine level language. Okay, so it is called as a compiler and it is a translator code written in one program language so some other language without changing the meaning of code. Compiler का यूज क्या है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में भले ही लेके जाए बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होता. जो भी हमने स्टेटमेंट लिखे उनकी मीनिंग चेंज नहीं होती है ना. यूजर के लिए उसका प्रोग्राम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, मशीन को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, बट मीनिंग कहीं पे भी नहीं चेंज हो रहा है. हमें एडिशन का ही प्रोग्राम करना है, तो हम जब प्रोग्राम करेक्ट करेंगे और वो एग्जीक्यूट होगा तो हमें एडिशन ऑफ 2 नंबर ही दिखेगा. ऐसा नहीं होगा कि एडिशन का प्रोग्राम था और सब्सट्रैक्शन दिख रही है, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, मतलब मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम कैन नॉट चेंज when it translate into one code to another code. Okay, 1 minute student. ओके, अगेन कंपाइलर और एक चीज करता है, दे मेक अ एंड कोड. आपका जो एंड कोड आता है इट मेक्स इफिशिएंट एंड मोर फास्ट एग्जीक्यूटेबल. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टाइम एग्जीक्यूशन टाइम बचता है और दूसरा मेमोरी स्पेस. Okay, according to that they can apply the optimization techniques. They can apply the optimization techniques. तो कैसे, यही पढ़ना है हमें. तो now we have to come with the next topic. Okay, so what is a compiler? Convert high level language program to low level language program without changing the meaning of statements, code, and it makes a code more efficient by using optimization techniques. Okay, so now we have to come with the compiler. So compiler क्या करता है, आपका high level language program है, कंपाइल करता है और कंपाइल करने के बाद आपको आपको आउटपुट मिलता है, बट बैकएंड में लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में वो कन्वर्ट होता है. ठीक है, इन बिटवीन क्या प्रोसेस होती है? सो इन बिटवीन जब प्रोसेस होती है, आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम होने से पहले वो प्रोसेस में जाता है. प्रोसेस में क्या होता है, तो इट इंक्लूड बेसिक ट्रांसलेशन मैकेनिज्म कि हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में करना है. बट जब आपका प्रोसेस होता है तो प्रोसेस में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि पहले लेक्सिकल एनालिसिस होता है, दैट मीन्स इट क्रिएट्स अ टोकन्स.
ठीक है। दूसरा सिंटैक्स चेक होते हैं, दैट्स व्हाई दे कैन यूज एज सिंटैक्स एनालिसिस। मीनिंग चेक होता है कि जो आपने स्टेटमेंट लिखा है, जैसे कि आपने स्टेटमेंट लिखा है इफ r इज लेस देन 10, सपोज आपने ऐसे लिखा हुआ, तो या फिर नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0, ये आपने कंडीशन लिखा है, तो वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है या नहीं। जैसे कि आपने IF इफ लिखा है बट वो कैपिटल में लिखा है, सो IF इफ अगर सी प्रोग्रामिंग का बात करें तो इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज एंड इट डज नॉट एक्सेप्ट कैपिटल IF इज अ कीवर्ड। ओके, ये उसके पास कीवर्ड ही नहीं है तो उसके लिए एरर देगा कि IF इफ आपने डिक्लेयर ही नहीं किया है, ठीक है। सो सिंटैक्स एरर, तो आपकी एरर कौन सी है? सिंटैक्टिकल एरर है, लेक्सिकल एनालाइजर की एरर है, या सिमेंटिक एरर है, मतलब उसका कुछ मीनिंग ही नहीं लग रहा है, तो सिमेंटिक एरर है। देन एंड इट क्रिएट्स अ इंटरमीडिएट कोड एंड अप्लाई द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ये आपके कंपाइलर में प्रोसेस होता है, कंपाइलर में प्रोसेस होके इट क्रिएट्स अ बैकएंड कोड, तो एक बैकएंड कोड क्रिएट करता है, ठीक है। तो कंपाइलर क्या क्या चीजें करता है? तो कंपाइलर इट टेक्स अ इनपुट as a source program and it converted into low level language program, but in between it has apply lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis, and finally it creates an intermediate code applying with optimization techniques। तो ये प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। तो कैसे परफॉर्म होते हैं? सो नाउ वी हैव टू कम विद द कंपाइलर और डिटेल में कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर को दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आपका पहला होता है एनालिसिस फेज एंड दूसरा होता है सिंथेसाइज फेज, ठीक है। कंपाइलर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एनालिसिस एंड सिंथेसिस फेज। तो व्हाट इज द एनालिसिस फेज? तो जो आपका सोर्स कोड है, जो आपका .c का प्रोग्राम है, वो आपका सोर्स कोड है, वो एनालिसिस फेज में एज ए इनपुट जाता है एंड देन इट अप्लाइज द फ्रंट एंड, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। वो क्या क्या अप्लाई करता है? तो पहले लेक्सिकल एनालिसिस अप्लाई करता है, फिर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सो सिंटैक्स एनालिसिस अप्लाई करता है, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल जा रहा है, सो इट क्रिएट्स अ semantic analyzer. Semantic analyzer creates a annotated parse tree and it goes to the intermediate code representation. Intermediate code representation होने के बाद जो आपका कोड क्रिएट होता है, it is go to the synthesis. Okay, and this synthesis process is also called as a backend. And synthesis process होने के बाद आपको machine code मिलता है, then machine को machine code मिलता है, ठीक है। So your compiler can be broadly divided into two phases, analysis phase and synthesize phase. The analysis phase is also known as front end of compiler. So analysis phase reads source program divided into core parts and it checks the lexical analyzer, grammar, syntax errors, अगर है ये है तो वहां से रिमूव होते हैं, फिर उसके बाद इट क्रिएट्स इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन एंड इट क्रिएट्स सिंबल टेबल, ठीक है। ये क्या है, कैसे करने हैं वो धीरे धीरे हम पता करेंगे, बट अभी सिर्फ याद रखो कि आपके कंपाइलर में दो मेन फेजेस होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ओके, फ्रंट एंड में क्या क्या होता है? तो फ्रंट एंड में आपको पहले आपका सोर्स कोड एज ए इनपुट लिया जाता है, वहां पे टेक्निक्स अप्लाई होती है। पहले लेक्सिकल एनालाइजर, ये एक फेज है, सिंटैक्स एनालाइजर ये अलग फेज है, तीसरा सिमेंटिक एनालाइजर अप्लाई होता है। लास्ट में ये तीनों चीजें ओके हैं, देन इट क्रिएट्स अ इंटरमीडिएट कोड। अगर उसमें भी कुछ रिपीटेशन है, वी अप्लाई द कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। और फाइनली जो इंटरमीडिएट कोड क्रिएट होता है, दैट इज input of your synthesize phase. This is the input of your synthesize phase. The synthesize phase is also called as a backend of your compiler. In synthesize phase, we generate the target program which help to the intermediate source code representation and symbol table जो आपने आपके फ्रंट एंड में क्रिएट किया है, ठीक है। सो दिस इज द कंपाइलर। ये कंपाइलर आपका इस टाइप से वर्किंग करता है। देखो स्टूडेंट, आपको ये पहले थोड़ा सा अनईजी होगा कि अरे ये क्या चल रहा है, ठीक है। पहले आपको सेम वन में एक सब्जेक्ट था सिस्प्रो, ठीक है। वो आपका सिस्प्रो सब्जेक्ट उन्होंने रिमूव कर दिया, इंस्टेड ऑफ दैट दे कैन इंक्लूडेड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो सिस्प्रो था इसमें ऑलरेडी ये चीजें उन्होंने एलॉबरेट की थी। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता दूं, आपके कंपाइलर के दो पार्ट्स होते हैं, एनालिसिस एंड सिंथेसाइज। एनालिसिस में और वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो कम टू द एनालिसिस फेज, हम धीरे धीरे आएंगे। वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक एंड इंटरमीडिएट कोड, ठीक है। ये फ्रंट एंड है, ये फ्रंट एंड आपके कंपाइलर का होता है। इसके बाद जो इंटरमीडिएट कोड क्रिएट होता है वो सिर्फ सिंथेसाइज मतलब बैक एंड का फेज है, जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि 0-1 फॉर्मेट की लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती, ठीक है। तो वो सिंथेसाइज फेज होता है। तो बैकएंड है, तो बैकएंड में वो क्या करता है, अगर आपका कोड ऑप्टिमाइज है, इंटरमीडिएट कोड क्रिएट हो चुका है, तो इसको इजीली मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है बाय यूजिंग अ सिंथेसाइज फेज। और उस सिंथेसाइज फेज का और एक नाम है, दैट इज बैकएंड।
ओके, सो यू कैन कीप इन योर माइंड फ्रंट एंड एंड बैक एंड. फ्रंट एंड में 4 फेजेस है, बैक एंड में सिर्फ एक ही फेज है, ठीक है. और वो क्या करता है, सिंथेसाइज फेज लास्ट में मशीन कोड में उसको कन्वर्ट कर देता है. ओके, सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द कंपाइलर. ओके, नाउ आपका जो कंपाइलर है इट हैज मेनी पासेस एंड मेनी फेजेस. जो आपका कंपाइलर है उसको काफी सारे पासेस भी आते हैं और मेनी फेजेस भी आते हैं, ठीक है. तो पास क्या है, तो जब आपका प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज में जाता है तो काफी बार ट्रैवल्स होता है, एक फेज से दूसरे फेज में, दूसरे फेज से तीसरे फेज में, तो उसको जो टाइम लगता है, दिस एंटायर प्रोग्राम ट्रैवल्सर इज कॉल्ड एज अ पास. ये जो ट्रैवल्सर होता है एक फेज से दूसरे फेज में, दूसरे से तीसरे फेज में, सो होल ट्रैवल्सर ऑफ द कंपाइलर थ्रू द एंटायर प्रोग्राम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ पास. दिस इज रेफर एज पास. और दूसरा है फेजेस. सो फेजेस ऑफ कंपाइलर आर डिस्टिंग्विशेबल इन नंबर ऑफ फेजेस. ओके, सो हर एक फेज में क्या होता है, जो आपका प्रीवियस फेज है, ठीक है, उस प्रीवियस फेज से, जैसे कि आपने सोर्स कोड लिया है तो सोर्स कोड इज इनपुट ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर, ठीक है. तो जो लेक्सिकल एनालाइजर है आपका इन बिटवीन फेज है, तो क्या करता है, जो प्रीवियस फेज है उससे इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है अपने हिसाब से और उसका आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है. जो भी उसका आउटपुट जनरेट हो रहा है, अगेन इट इज इनपुट ऑफ नेक्स्ट फेज. ओके, एंड दिस प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन. Okay, so a phase of compiler is a distinguishable stage which takes input from previous stage, process and yield output that can be used input of the next stage. A pass can have more than one phase. Okay, pass में एक से ज्यादा phases हो सकते हैं. Student, got it student? Yes, ma'am. धीरे धीरे समझ में आएगा. अभी तो सिर्फ याद कर लो कि इसमें क्या आ रहा है, पास आ रहे हैं, फेज आ रहे हैं. ओके, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा. ओके, सो नाउ वी हैव टू कम विद द फेजेस. ठीक है, आपका जो पहले यहाँ पे 2 पार्ट हमने देखे कि इट हैज मेनी फेजेस एंड मेनी पासेस. तो हमने यहाँ पे पास एंड फेज, तो पहले हम फेज में जाएंगे. सो नाउ वी हैव टू कम विद द कंपाइलर. सो कंपाइलर, फेजेस ऑफ कंपाइलर. ओके, सो फेजेस ऑफ कंपाइलर में कितने मैम, फेजेस है? हाँ बोलो. वो पीपीटी दिख नहीं रहा है, थोड़ा मैक्सिमाइज करेंगे क्या? ओके, 1 मिनट. डायग्राम दिख नहीं रहा है. हाँ हाँ, 1 मिनट. अब दिख रहा है हमें? यस मैम. थोड़ा और बड़ा करूं? अब ठीक है? यस मैम. ओके, सो फेजेस ऑफ कंपाइलर. सो फेजेस ऑफ कंपाइलर में कितने फेजेस हमें पढ़ने? तो सी दिस: लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस एंड इंटरमीडिएट कोड. ओके, इंटरमीडिएट कोड. अब इंटरमीडिएट कोड मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर, कि कुछ कोड ऑप्टिमाइज करने तो कुछ मशीन डिपेंडेंट होते एंड कुछ इंडिपेंडेंट्स होते. ओके, सो इंटरमीडिएट कोड में ये 3 पार्ट्स आते हैं. मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर, कि कुछ डिपेंडेंट कोड है जो मशीन पे डिपेंड करता है, एंड कोड जनरेशन, फिर उसके बाद फिर से कोड जनरेट होता है, एंड कोड जनरेट होने के बाद कुछ कोड ऐसा होता है जो मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होता. ओके, वो मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होता. उसके बाद इट क्रिएट्स अ टारगेट कोड. ओके, सो मैंने अभी जो बोला था आपको फ्रंट एंड, तो हमें सिर्फ यहाँ पे फ्रंट एंड ही पढ़ना है. कंपाइलर इट कंटेन्स अ फ्रंट एंड. जो भी टारगेट कोड है उसके बाद जो 01 फॉर्मेट आता है मशीन कोड का, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वैसे भी हमें कुछ समझ में नहीं आता वो. ठीक है, तो हमें बैक एंड में कोई इंटरेस्ट नहीं, वी आर इंटरेस्टेड इन फ्रंट एंड. ओके, तो फेजेस ऑफ कंपाइलर, पहले वी हैव टू राइट अ सोर्स कोड. तो सोर्स कोड क्या है? आपका जो .c का प्रोग्राम है, जैसे कि हमने प्राइम नंबर का प्रोग्राम किया है, तो हम नाम कैसे देते हैं? prime.c. तो मेरा जो prime.c का प्रोग्राम है, दिस इज द सोर्स कोड, is the input of lexical analyzer. It is the input of lexical analyzer. So phases of compiler में पहला आपका phase है, first phase of your compiler is lexical analyzer. Okay, what is a lexical analyzer? Lexical analyzer take input from source code and execute it and it creates a number of tokens. वो क्या करता है? जो आपका सोर्स कोड है .c का प्रोग्राम, वो एज ए इनपुट लेता है. ठीक है, इनपुट लेने के बाद वो स्कैन करता है. दैट्स व्हाई लेक्सिकल एनालाइजर इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ स्कैनर. वो क्या करता है? इनपुट जो है, जो उसके पास इनपुट आया है, हमने पूरा प्रोग्राम स्कैन किया है, तो लाइन बाय लाइन वो प्रोग्राम स्कैन करता है. भले आपको लग रहा है कि आपका पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, बट वो कंपाइल करते टाइम लाइन बाय लाइन ही स्कैन करता है. सो इट स्कैन द प्रोग्राम एंड इट क्रिएट्स अ टोकन. जैसे उसने लाइन स्कैन की, उसके वो टोकन क्रिएट करता है. सो आउटपुट ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर इज नंबर ऑफ टोकन्स. Okay, so lexical analyzer is a first phase of your compiler.
it takes input as a source code, and what is the output? It creates output as a tokens. Yes student. ओके जब वो कोड स्कैन कर रहा है, अब उसमें क्या होता है कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, जैसे सी का प्रोग्राम फॉर एग्जांपल, सबको सी के प्रोग्राम पता है, तो दैट्स व्हाई आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ सी. तो सी का जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम में आप कैसे लिखते हो? इंटीजर पहले, मतलब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, सो इंटीजर a, b, या फिर आपने कैरेक्टर लिया है तो कैर ch ऐसा आपने लिखा होगा, या फिर फ्लोट लिया है तो फ्लोट. ठीक है, सो pi, तो आपने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए. तो यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एट द सेम टाइम दैट वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इन अ सिंबल टेबल. सो लेक्सिकन एनालाइजर जब भी आता है, इट क्रिएट्स अ टू टेबल, सिंबल टेबल एज वेल एज एरर हैंडलर टेबल, and that symbol table and error handler tables are required in each and every phase of your compiler. ठीक है, तो सिंबल टेबल क्यों लगता है? जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, चाहे कौन से भी वेरिएबल हो, कांस्टेंट वेरिएबल हो या फिर आपके सिंपल वेरिएबल हो, वो सारे वेरिएबल्स यहाँ पे सिंबल टेबल में स्टोर होते हैं. ओके, सो इन लेक्सिकल एनालाइजर इट क्रिएट्स अ टेबल्स आल्सो. तो कौन सा टेबल वो क्रिएट करता है? सिंबल टेबल, एरर हैंडलर टेबल, और एक टेबल होता है लिटरल टेबल. लिटरल टेबल मतलब आपके जो कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला था पी पाई, तो पाई का वैल्यू यहाँ पे हम वेरिएबल पाई का यूज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं? तो आप कांस्टेंट लेते हो, तो या फिर वेरिएबल लेते हो. पी आई आपने लिखा होता है फ्लोट पी आई, और पी आई का वैल्यू आप असाइन करते हो 3.142. ठीक है, सेमीकोलन. तो वो जो वैल्यूज है that variables are stored into that symbol table. कि वेरिएबल का नाम क्या है, मतलब आइडेंटिफायर का नाम क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसको कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, और वो कहाँ पे स्टोर है. ऑल दैट डिटेल्स ऑफ वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स आर स्टोर्ड इन अ सिंबल टेबल. एट द सेम टाइम सपोज लेक्सिकल एनालाइजर में आपने कुछ वहाँ पे कुछ एरर जनरेट हुई, जैसे कि आपने कॉमा नहीं दिया या आप सेमीकोलन देना भूल गए हो. ठीक है, वहाँ पे एरर आती है, तो ऑब्वियसली लेक्सिकल एनालाइजर इमीडिएटली क्रिएट्स अ सेकंड टेबल, दैट इज एरर हैंडलर टेबल, एंड दैट एरर्स आर मेंशन इन एरर हैंडलर टेबल. Yes student, got it, with number, line number. ठीक है, तो lexical analyzer it creates two tables, symbol table and error handler table, and in symbol table we have to store the variable details, and in error handler table we have to store the error detail. जो भी आप प्रोग्राम में errors आपको मिल रहे हैं, वो error कहाँ पे enlist हो जाती है? तो error handler table में. इसीलिए पॉसिबल है कि आपका पूरा प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद हमें लिस्ट मिलता है कि हमारी क्या क्या एरर्स है, कौन से लाइन पे क्या क्या एरर प्रेजेंट है. क्यों? क्योंकि आपने एरर हैंडलर टेबल वहाँ पे यूज किया हुआ है. ओके, गॉट इट स्टूडेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो लेक्सिकल एनालाइजर टेक अ इनपुट. यहाँ पे बेसिकली याद रखो, क्योंकि आपने अगर ऑब्जर्व किया तो आपका ये चैप्टर नंबर 2 है. सिंटैक्स एनालाइजर ये आपका चैप्टर नंबर 3 है. सिमेंटिक एनालाइजर ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ये आपका चैप्टर नंबर 5 है. ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपको हर एक चैप्टर में ये डिटेल्स मिल जाएंगे. अभी तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट याद रखना है कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है. इट टेक अ इनपुट एज अ सोर्स कोड एंड इट क्रिएट्स अ नंबर ऑफ टोकन्स. उसका आउटपुट क्या है? नंबर ऑफ टोकन्स. सो नंबर ऑफ टोकन्स जो भी क्रिएट होते हैं वो क्या होते हैं? उसके आउटपुट है. बट हमने देखा है इट इज फेजेस, और फेजेस में क्या होता है, जो प्रीवियसली जिसका आउटपुट है नेक्स्ट फेज के लिए इनपुट होता है. सो यहाँ पे जो टोकन क्रिएट होते हैं, दैट टोकन इज इनपुट ऑफ द सिंटैक्स एनालाइजर. सो सिंटैक्स एनालाइजर में ये जो टोकन्स क्रिएट हुए लेक्सिकल एनालाइजर के एज ए इनपुट सिंटैक्स एनालाइजर में जाते हैं. ठीक है, सो सिंटैक्स एनालाइजर फाइंड आउट दैट टोकन्स एंड इट क्रिएट्स अ पार्स ट्री. ओके, हमने जो सीएबी में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में डेरिवेशन ट्री देखा था स्टूडेंट, तो जो डेरिवेशन ट्री है वो कहाँ पे फॉर्म होता है? तो सिंटैक्स एनालाइजर में फॉर्म होता है, और डेरिवेशन ट्री इज कॉल्ड एज पार्स ट्री. तो यहाँ पे जो पार्स ट्री क्रिएट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पार्स ट्री क्रिएट होता है. अगर यहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर, जैसे कि आपने IF इफ कैपिटल में लिखा है, स्मॉल में नहीं लिखा है, और हमें पता है कि कैपिटल IF इफ अलाउड ही नहीं है सी में, सो इट इज अ सिंटैक्स एरर. तो वो एरर हैंडलर टेबल में मेंशन हो जाएगी. या फिर आप कोई वेरिएबल ले रहे हो, i इज लेस देन 10, तो i क्या है? एक वेरिएबल है. सिंबल टेबल में वो चेक करेगा i क्या है, इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल है, तो क्या उसकी पहले कोई वैल्यू है? तो हाँ, सब उसकी वैल्यू आपने i इज इक्वल टू 1 असाइन करके रखी है, तो वो पहले i की वैल्यू रिप्लेस करेगा. कहाँ से लेगा? सिंबल टेबल से. तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर्स, यहाँ पे आपके सिंटैक्स एनालाइजर फाइंड आउट द सिंटैक्स एरर. अगर है तो एरर हैंडलर टेबल में वो मेंशन हो जाएगी. Okay, and it creates a parse tree. So syntax analyzer creates a parse tree which is the input of semantic analyzer.
सो सिमेंटिक एनालाइजर क्या करता है, जो भी सिंटैक्स एनालाइजर का पार्स ट्री है इवैल्यूएशन करने का काम, जैसे कि आपने सपोज वहां पे आपने दिया है 2 × 3, तो यहाँ पे पार्स ट्री क्रिएट हुआ है मल्टीप्लीकेशन 2 लेफ्ट चाइल्ड 3 राइट चाइल्ड, तो यहाँ पे जो पार्स ट्री है वो इवैल्यूएट करने का काम आपका सिमेंटिक एनालाइजर करता है। जैसे कि आपने लिखा है a + b, तो a + b, a का वैल्यू क्या है पता नहीं, b का वैल्यू पता नहीं, तो वो कहाँ से आएगा, सिमेंटिक एनालाइजर क्रिएट्स अ अनोटेड पार्स ट्री, वो वहाँ पे क्या करता है, अनोटेड पार्स ट्री क्रिएट करता है और वहां पे वो एक्चुअली इवैल्यूएशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो फिर से अगर आपने इसे यहाँ पे लिखा है c = a + b, तो व्हाट इज c, सिंबल टेबल में जाएगा वो c चेक करेगा, व्हाट इज a का क्या वैल्यू दिया है वो सिंबल टेबल में जाके चेक करेगा, b का वैल्यू क्या दिया है तो वो वैल्यू वहां पे रिप्लेस करेगा, फिर इवैल्यूएशन होगा c = a + b एंड इट असाइन अ वैल्यू c = जो भी आएगा 5 + 3 दिया है तो 8 आएगा, जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो semantic analyzer provides the meaning of that statement and it creates a annotated parse tree, यहाँ पे एक annotated parse tree create होता है which is evaluated parse tree and it goes to the intermediate code। अब वो इंटरमीडिएट कोड पे जाता है, इंटरमीडिएट कोड्स क्रिएट अ मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड, तो मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड करने से पहले वो ऑप्टिमाइज टेक्निक यूज करता है, जो भी मशीन डिपेंडेंट कोड है उस पर ऑप्टिमाइज टेक्निक यूज होती है, फिर कोड जनरेशन होता है, फिर उसके बाद मशीन इंडिपेंडेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती है, फिर कोड जनरेशन होता है, फिर उसके बाद मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती है, फाइनली इट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड मतलब टारगेट कोड यहाँ पे क्रिएट होता है। ओके, so every phase of your compiler requires a symbol table as well as error handler table, so that's why we can write कि हर एक टेबल को हमने कनेक्ट किया है सिंबल टेबल से as well as error handler टेबल से, एंड फाइनली आपका अगर प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो आपका टारगेट कोड क्रिएट होता है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद आपके पास लिस्ट आती है कि ये इस लाइन पे ये एरर प्रेजेंट है, फिर से हम क्या करते हैं, फिर से हम प्रोग्राम में जाते हैं, वो करेक्शंस करते हैं, फिर से हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, फिर से ये सारे फेजेस एक्टिव होते हैं, फिर से वो काम करता है एंड इट क्रिएट्स अ टारगेट कोड। गॉट इट स्टूडेंट? Yes, ma'am. ओके, Yes, सो दिस इज द फेजेस ऑफ, Yes, ma'am. ये सारे फेजेस ऑफ कंपाइलर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो लेक्सिकल एनालाइजर है ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंटैक्स एनालाइजर ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिमेंटिक एनालाइजर जो यहाँ पे वहाँ पे एसडीडी करके दिया है वो सिमेंटिक एनालाइजर है, वो आपका चैप्टर नंबर 4 है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो पूरा है दिस इज इंटरमीडिएट कोड एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस इज द फ्रंट एंड, है ना, हमने यहाँ पे जो देखा था अभी कि ये 2 फेजेस में जाता है एनालिसिस एंड सिंथेसाइज, तो फ्रंट एंड आपका जो फ्रंट एंड है इट इज अ लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर एंड इंटरमीडिएट कोड, ये आपकी फ्रंट एंड में ही कवर हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है इट इज गो फॉर सिंथेसाइज फेज, वो जो बैकएंड का पार्ट है वी आर नॉट इन्वॉल्विंग इन बैकएंड पार्ट, ओके, वो कोड जनरेशन का पार्ट है, वो कोड जनरेशन करने का काम सिंथेसाइज फेज का है, वो कर लेगा, ठीक है। मशीन कोड वैसे भी हमें समझ में नहीं आती लैंग्वेज 01 की, ठीक है, तो हमारा पार्ट नहीं है वो सिलेबस का। तो बट आपका चैप्टर, ये जो आपका सिलेबस है, इस कोर्स का सिलेबस है, ये पूरा आपके फ्रंट एंड पे डिपेंड करता है। यस स्टूडेंट, गॉट इट? कोई डाउट है पूछ लो, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड फर्दर। ओके, सो फेजेस ऑफ कंपाइलर फिर से मैंने वही यहाँ पे लिख के दिया है, ठीक है। सो शॉर्ट में लिखा है लेक्सिकल एनालाइजर, इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ योर कंपाइलर, इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ स्कैनर, क्योंकि वो हर बार लाइन स्कैन करता है तो उसको बोलते हैं स्कैनर। Okay, so text scanner. This phase scans source code as a stream of characters and converted into meaningful lexemes. That lexical analyzer represent the lexeme in the form of tokens. अब ये lexeme क्या है, वो कैसे स्कैन करता है, ये सब हम डिटेल चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो टोकन क्रिएट करते वक्त टोकन नेम आता है और उसका एट्रीब्यूट वैल्यूज आता है, ठीक है, इतना यहाँ पे क्रिएट होता है। देन इट गोज टू द सिंटैक्स एनालाइजर। सिंटैक्स एनालाइजर आपका चैप्टर नंबर 3 मैंने बोला बिग वेटेज चैप्टर है, वो यहाँ पे यहीं पे हम वो काम करेंगे। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज द parser. Okay, so the next phase after lexical analyzer जो भी आपका next phase आता है, this is the second phase of your compiler, okay, and it is also called as a parsing. It takes a token produced by lexical analyzer as an input and generate a parse tree, or it is also called as a syntax tree. In this phase token arrangements are checked against the source code grammar, ठीक है, and if parser check if expression made by token is syntactically correct, then and then it goes to the semantic analyzer, otherwise यहाँ पे syntax error generate हो जाएगी, ठीक है। Then semantic analyzer, it is the
टेक इनपुट एज अ पार्स ट्री, ओके, एंड यहाँ पे जो पार्स ट्री है उसके लिए रूल्स अप्लाई होते हैं, ओके, जो भी हमने यहाँ पे ग्रामर चेक किया है अब यहाँ पे उसके रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर फॉलोज द रूल्स ऑफ लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज इन बिटवीन कंपैटिबल डेटा टाइप्स। तो पहले वो क्या करता है, सपोज हमने असाइनमेंट वैल्यू दी है c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो c को a प्लस बी का वैल्यू असाइन होने वाला है। सो पहले वो a एंड b का डेटा टाइप लेगा, वो c से मैच करेगा कि तीनों भी इंटीजर है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट फिर उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, तो वो सारे रूल्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं कि इंटीजर है या नहीं, या सिर्फ आपने ऐसे लिखा है फ्लोट इज, सपोज आप किसी फ्लोट वैल्यू में डाल रहे हो, तो आपने सी में देखा होगा, सी के प्रोग्राम में, कि अगर आप कोई आंसर ले रहे हो और अगर दोनों वैल्यू राइट हैंड साइड की i डिवाइडेड बाय 2 ऐसा आपने दिया है और i भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, तो आपको फिगर कैसे मिलती है स्टूडेंट, आपको आउटपुट कैसे मिलता है। सपोज फ्लोट वैल्यू है c, आपकी फ्लोट है, इज इक्वल टू आपने लिखा है i डिवाइडेड बाय 2, i भी आपका इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, आपको वैल्यू कैसे मिलेगी, फ्लोटिंग में मिलेगी या राउंड फिगर में मिलेगी। आपको आपने सी लैंग्वेज में टाइप कास्टिंग किया होगा, टाइप कास्टिंग पता है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, क्यों यूज करते हैं हम टाइप कास्टिंग? डेटा टाइप मतलब कन्वर्ट करने के लिए। टेम्पररी या परमानेंट? Temporary. टेम्पररी, यस। क्यों करते हैं? सपोज आपने इस तरह से एग्जांपल आपको दिया है कि सी आपका फ्लोट वैल्यू है, सो c इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाय 2, आपका i भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर है, आपको आंसर क्या मिलेगा? सपोज आपका i सपोज i आपका 3, तो 3 है, मतलब आपका आउटपुट कैसे आना चाहिए, 1.5 आना चाहिए, बट आपको आंसर मिलेगा 1.00, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपके राइट हैंड साइड के दोनों वैल्यूज क्या है, इंटीजर है, और लेफ्ट हैंड साइड का जो असाइनमेंट वैल्यू है वो फ्लोट है। तो आप क्या करोगे, आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो आप एक तो i को या फिर 2 को टेम्पररीली टाइपकास्ट करोगे। किससे टाइपकास्ट करोगे आप? फ्लोट से, okay, so instead of writing this c is equal to i divided by 2, you have to write c is equal to in bracket float i divided by 2 and we get the answer 1.5, we get the answer 1.5। कैसे हुआ? तो इसके बैकएंड में है कि आपने उसको कंपैटिबल टाइप में डाला, यस, आपने टेम्पररीली आपके i को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है बाय यूजिंग टाइप कास्टिंग मेथड, और उससे क्या हुआ, वी गेट द एग्जैक्ट आंसर। ये कैसे परफॉर्म हुआ? अगर ऐसा नहीं किया तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी मेंटेन नहीं होगी, सो वी हैव टू मेंटेन द कंपैटिबिलिटी, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल दिया है, आपको याद रखना है ऐसा कुछ नहीं है, बट आप देख लो, कभी भी आप सी के प्रोग्राम करो तो आपको ये एरर्स हमेशा आती है, एरर नहीं आती, आउटपुट आता है बट एग्जैक्ट आउटपुट नहीं आता। सो आपका जो सिमेंटिक एनालाइजर है वो कंपैटिबिलिटी देखने का काम वो करता है। देन सेकेंड वन, इट्स सिमेंटिक एनालाइजर कीप ट्रैक ऑफ आइडेंटिफायर्स, कि आप कौन से आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं, देयर डेटा टाइप्स, ठीक है, एंड द एक्सप्रेशंस, आप कैसे एक्सप्रेशंस यूज कर रहे हो, ओके। सो वेयर द आइडेंटिफायर्स आर डिक्लेयर्ड बिफोर यूज और नॉट, ठीक है, कि आपने पहले वेरिएबल डिक्लेयर किए या नहीं, मतलब आपने अगर वेरिएबल नीचे यूज किया है और ऊपर डिक्लेयर नहीं किया तो ये आपकी सिमेंटिकल एरर है, सिंटैक्ट एरर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर भी हमें पता होनी चाहिए कि हमारी एरर्स क्या क्या है, तो सिंटैक्स एरर नहीं, सिमेंटिकल एरर है, ठीक है। द सिमेंटिक एनालाइजर प्रोड्यूसेस अनोटेड पार्स ट्री और सिंटैक्स ट्री एज एन आउटपुट, ठीक है। तो वो अनोटेड पार्स ट्री यहाँ पे क्रिएट करता है एंड दैट अनोटेड पार्स ट्री आर गो टू द इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ओके। सो जो भी अनोटेड पार्स ट्री है वो यहाँ पे उसका टारगेट कोड यहाँ पे क्रिएट होता है, इट रिप्रेजेंट फ्रॉम सम एब्स्ट्रैक्ट मशीन, ठीक है, बिटवीन द हायर लेवल लैंग्वेज एंड द मशीन लेवल लैंग्वेज। इंटरमीडिएट कोड क्या है, वो इन बिटवीन है, आपकी हायर लेवल लैंग्वेज और लोअर लैंग्वेज की इन बिटवीन प्रेजेंट, ओके, दैट्स व्हाई कंपाइलर इट इज कॉल्ड एज मिडिल लेवल लैंग्वेज, ओके। सी को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि वो इंटरमीडिएट का काम करता है, हायर लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लेता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में डालता है, बट खुद के पास कुछ नहीं लिखता, इट इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। उसको दोनों चीजें पता है, हायर लेवल लैंग्वेज भी पता है, लोअर लेवल लैंग्वेज भी पता है, सो इट इज अ इंटरमीडिएट कोड। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कोड क्या है, तो वो हायर लेवल लैंग्वेज एज वेल एज मशीन लेवल लैंग्वेज के बीच में काम करता है, सो इट इज इंटरमीडिएट। दिस इंटरमीडिएट कोड शुड बी जनरेटेड इन सच अ वे दैट इट मेक्स इट इजियर टू ट्रांसलेट द टारगेट मशीन कोड। क्यों इंटरमीडिएट कोड चाहिए? तो वो आपको इजी फॉर्मेट में, मतलब आपका जो टारगेट कोड आएगा वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट टेकिंग सो मच टाइम,
ओके। सो कोड ऑप्टिमाइजेशन, कि कोड ऑप्टिमाइजेशन क्यों रिक्वायरमेंट है? सो गो टू द टीसीएस। टीसीएस में हमने देखा था स्टूडेंट कि डीएफए हम फॉर्म करते थे, बट डीएफए फॉर्म करने के बाद लास्ट में और एक टॉपिक था मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। तो व्हाट इज द यूज ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए स्टूडेंट? What, ma'am? What is the use of minimization of DFA? Ma'am, to decrease number of steps. हाँ, वो क्या करता है, जो स्टेट्स है, जो एक्स्ट्रा स्टेट्स है या ट्रांजिशन एक्स्ट्रा जो है वो लेस करने का काम, अगर रिपीटेड है तो वो लेस करने का काम आपका इंटरमीडिएट मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए करता था। यहाँ पे भी वही चीज है कि सपोज आपका कुछ ऐसा कोड है जो अननेसेसरी आपने यूज किया। काफी बार होता है कि हम एक आध वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर देते हैं और हम प्रोग्राम में वो यूज ही नहीं करते, तो आपका प्रोग्राम एरर देता है कि दैट वेरिएबल यू हैव टू डिक्लेयर बट नॉट यूज्ड, है ना। तो वो एरर कैसे दे रहा है? तो कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ये आपके कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का काम है कि वो क्या कर रहा है कि ऐसा कोड जो अननेसेसरी आपके प्रोग्राम में प्रेजेंट है, उसका कुछ भी यूज नहीं, डेड कोड है, तो वो रिमूव करने का काम आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन करता है। दूसरा, कॉमन सब एक्सप्रेशन, कि आपके प्रोग्राम में काफी बार एक्सप्रेशन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, तो एलिमिनेशन ऑफ कॉमन सब एक्सप्रेशन, ये करने का काम भी आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन क्यों करता है? तो उसका पर्पस है कि आपका जो नंबर ऑफ लाइंस है वो कम हो जाए। दूसरा, एग्जीक्यूशन स्पीड, आपके प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो इंक्रीज हो जाए। ओके, सो द नेक्स्ट फेज डज कोड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजेशन कैन बी अज्यूम्ड। प्लीज ऑफ योर माइक। आप बाहर हो और आपने अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट की है तो हमें बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। प्रतिभा पार्वती दास, प्लीज ऑफ योर माइक। ओके, सो क्यों चाहिए कोड ऑप्टिमाइजेशन? तो आपका जो सीपीयू का एग्जीक्यूशन स्पीड है वो हमें इंक्रीज करना है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि आपने अननेसेसरी मेमोरी एलोकेट करके रखी है किसी वेरिएबल को, या फिर कोई कोड है जो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका कोई फायदा ही नहीं है, तो उस टाइम वी हैव टू यूज द कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। एंड ये सब करने के बाद जो क्रिएट होता है दैट इज अ कोड जनरेशन। फिर कोड जनरेशन क्रिएट होता है। ओके, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, एंड फाइनली वी हैव टू क्रिएट अ कोड जनरेशन। सो इन दिस फेज कोड जनरेशन takes optimization representation of intermediate code, map it to the target machine language and it directly converted into a machine code। फिर ये डायरेक्टली मशीन कोड में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द यूज ऑफ phases of compiler। This is the use of phases of compiler। So everyone please take a screenshot of this। Done student? Yes, ma'am. Yes. Okay. Next, take a screenshot of this। Done? Yes, ma'am. नेक्स्ट, फेजेस ऑफ कंपाइलर। ओके, अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि फेजेस ऑफ कंपाइलर जो है काफी बार एग्जाम में इट इज आस्क्ड फॉर 3 to 4 मार्क्स, मतलब मैक्सिमम आपके इसमें 4 मार्क्स के लिए आएगा। आपके अगर पेपर पैटर्न देखा तो ठीक है, तो 4 मार्क्स के लिए तो आपको क्या क्या एक्सपेक्टेड है? तो पहले डायग्राम निकालो, फिर उसके बाद जो भी मैंने छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन दिए वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी आपको छोटे छोटे फॉर्मेट में देने, ठीक है। एंड वी गेट 4 मार्क्स और 3 मार्क्स, डिपेंड कि उन्होंने कितने मार्क्स के लिए दिए, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पूछेंगे? तो 4 मार्क्स के लिए डिफरेंस पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, वो काफी कम बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट, फेजेस ऑफ कंपाइलर, एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ कंपाइलर। तो पहले आपको डायग्राम निकालनी, डायग्राम निकालने के बाद फेजेस ऑफ कंपाइलर छोटे छोटे एक्सप्लेन करने कि उसको इनपुट, उसका इनपुट कहाँ से आ रहा है, उसका आउटपुट क्या जनरेट होगा, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 चीजें हमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन में देनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द फेजेस ऑफ कंपाइलर। यस, गॉट इट स्टूडेंट? कोई डाउट है पूछ लो। Yes, ma'am. ओके, कोई डाउट है? अमय? No, ma'am. These are the initial phase, so no doubt. Okay, तो कोई डाउट नहीं। ओके, सो नेक्स्ट टाइम वी हैव टू गो विद द यस 2 more phases आर रिमेन, दैट इज phases ऑफ कंपाइलर में सिंबल टेबल एंड एरर हैंडलर टेबल। ओके, सो सिंबल टेबल क्या है? तो डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, सो इस डेटा स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है? इट मेंटेन द डेटा स्ट्रक्चर थ्रू आउट ऑल फेजेस ऑफ कंपाइलर। आपकी हर एक फेज में ये डेटा स्ट्रक्चर आएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट डेटा स्ट्रक्चर? आपकी जो सिंबल है, ये आइडेंटिफायर है, वो आइडेंटिफायर का रिकॉर्ड, ओके, स्टोर करने का और हर एक फेजेस के टाइम वो रिट्रीव करने का काम आपका सिंबल टेबल करता है।
एज वेल एज आपका जो वेरिएबल है या आइडेंटिफायर है उसका स्कोप क्या है, लोकल स्कोप है, ग्लोबल स्कोप है, ठीक है, स्टैटिक है, कौन सा स्कोप है, तो वो वो जो चीजें मेंशन होती है वो सारी सिंबल टेबल में मेंशन होती है. सो एवरी फेजेस ऑफ योर कंपाइलर दे रिक्वायर्स अ सिंबल टेबल एज वेल एज दे रिक्वायर एरर हैंडलर टेबल. तो एरर हैंडलर टेबल क्यों, तो कंपाइलर में हर एक फेज में एरर हैंडलर टेबल यूज होता है क्योंकि पूरा प्रोग्राम आपको एट अ टाइम स्कैन करना है और फिर उसको कंपाइल करना है. जो भी हर एक फेज में एरर आ रहे हैं वो सारे आपको मेंशन करने हैं. तो मेंशन कहाँ पे करके रखेंगे हम, एरर हैंडलर टेबल. So each phase of compiler can encounter errors. After detecting error, error handler table deal with that error so that compilation process proceed further. Okay, so फिर कंपाइलेशन प्रोसेस मतलब हमने कंपाइल किया, पहले टाइम कंपाइल किया, कुछ एरर है हमने सॉल्व किए, फिर से हमने प्रोग्राम कंपाइल किया. इसलिए हर बार जब हम प्रोग्राम में कोई चेंजेस करते हैं वी कैन कंपाइल द प्रोग्राम. क्यों, क्योंकि वो एरर हैंडलर से फिर रिमूव हो जाती है एंड वो करेक्ट हो जाती है. ठीक है, तो वी हैव टू यूज द एरर हैंडलर टेबल. सो टू मोर टेबल्स वी हैव टू रिक्वायर, सिंबल टेबल एंड एरर हैंडलर टेबल. These are not part of your compiler but we can required in the execution of that phases of compiler. Yes student, got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, next lecture we have to discuss phases. तो हो गए. Next lecture we have to go with the types of compiler, that is phase passes. तो passes में सिर्फ definitions आती है, सिंगल पास, टू पास, मल्टी पास, वो क्या है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम. देन और दो चीजें रिक्वायर्ड है, क्रॉस कंपाइलर. क्रॉस कंपाइलर की डेफिनेशन काफी बार एग्जाम में आती है एंड हाउ द क्रॉस कंपाइलर डज बाय यूजिंग बूटस्ट्रैपिंग टेक्निक. तो बूटस्ट्रैपिंग टेक्निक क्या है वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे. तो इतना टॉपिक्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे. Yes student, and this is the end of your chapter number 1. ठीक है, छोटा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा. ओके, सो यस, कोई डाउट है तो पूछ लो. नाउ टुडे वी कैन स्टॉप आवर लेक्चर. एवरीवन राइट योर नेम एंड योर न्यू रोल नंबर इन चैट बॉक्स एंड देन लीव द मीटिंग. आपका थर्ड लेक्चर नहीं है आज. ओके, so everyone please before left the meeting you have to write your name as well as your new roll number. Okay, and thank you student, bye. Thank you, ma'am.